حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوشامد اور تعریف کی لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤ ہیں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تب کوئی دل بھی دکھا دے تو فرق نہیں پڑتا ہے۔ کسی انسان کے کردار کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ موقع ہونے کے باوجود بھی برائی سے بچتا ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگتا ہے۔ نفرت تو ہے انسان کی ایجاد، ورنہ اللہ نے تو صرف محبت بنائی تھی۔ مکڑی کے جال سے بھی کمزور ہوتے ہیں اس دنیا کے سہارے، نہ جانے کب اور کہاں ٹوٹ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سکون کی دولت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ اپنے وقار کو مضبوط رکھیں، چاہیں آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنی پڑے۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کی تمام دروازے کھول دیتا ہے، پھر آپ چاہیں شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ہمیشہ اچھا بولیں اور اچھا لکھیں، کیونکہ انسان فنا ہو جاتا ہے مگر الفاظ زندہ رہتے ہیں، سینوں میں بھی اور کتابوں میں بھی۔ یقین رکھیں اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، رزق اور عزت کسی اپنے کے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسئلے اٹھائے پھرتے ہیں۔ بے بسی انسان کو مار دیتی ہے، ورنہ جینا کون نہیں چاہتا ہے۔ یقین مانے اندھیروں میں بھی راستہ ہوگا جب اللہ سے رابطہ ہوگا۔ کسی نے بزرگ سے کہا کہ کوئی نصیحت کر دیں، بزرگ نے فرمایا، دھیان رکھنا کوئی خدا سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رکھیں کہ ہر وقت پیچھے پڑے رہنا، شکایتیں کرنا، یہ آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہے۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ جب پیار ہوتا ہے تبھی لوگ جھکتے ہیں، روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ورنہ عزت تو سب کو اپنی پیاری ہوتی ہے۔ اور اللہ جب معجزے کرنے پر آتا ہے تو ادھورے قصے بھی آسانی سے پورا کر دیتا ہے۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اور اللہ کے آگے رونے سے ہر دکھ درد سکون میں بدل جاتے ہیں۔ جس شخص سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ بحث نہیں کریں، بحث محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ نا امید کبھی نہ ہو، کیونکہ اللہ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اکیلا محسوس ہو تو قرآن پڑھیں، اللہ دلاسا دیتا ہے کہ میں ہوں نہ تمہارے پاس۔ اور پھر لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دیں، آپ کیا ہیں، کیسے ہیں، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ اعتبار ایک روح کی طرح ہے، اگر ایک بار چلا جائے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں لیکن خواہش تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ جب زندگی میں بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا لیں اور اللہ سے باتیں کریں، دکھ درد ان سے سنائیں اور اللہ سے ہی مانگے، وہ رحیم ہے، وہ ضرور مدد کرے گا۔
मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती हैं, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकल जाते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप देखने में कैसे हैं। आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो आप दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसानों में से हैं। बद्दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होते, जिसको दुख दो उसकी आह भी बद्दुआ बन जाती है और रब बहुत इंसाफ करने वाला है। लोग हमेशा धोखा गलत इंसान से खाते हैं और बदला अच्छे इंसान से लेते हैं। कुदरत का एक बहुत अनोखा असूल है, जब आप किसी की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने दरख्त पर भी फल लगना बंद हो जाता है। अगर आप ताकत रखने के बावजूद भी किसी की कमज़ोरी से फ़ायदा नहीं उठाते तो आप कमाल करते हैं। दुआएं दी नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। दो मीठे बोल इंसान को तो क्या, हैवान को भी ज़िंदगी भर के लिए अपना बना सकते हैं। जितना मिल जाए उतना कबूल कर लेना चाहिए। यह भी हो सकता है कि यह हमारी औकात से ज़्यादा है। हम तो गुनहगार बंदे हैं और उसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता रहता है। नर्म अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। मुश्किल अपना हल और मेहमान अपना रिज़्क साथ लेकर आते हैं। किसी नेकी को मामूली न समझें, शायद वही आपकी मग़फ़िरत का वसीला बन जाए। ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता मुस्तकिल हो, बस यादगार होना चाहिए। कौन कहता है अल्लाह नज़र नहीं आता? एक वही नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता। जब हमारी मुश्किल हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है तो समझ लें कि अल्लाह हमें बुलंद मकाम देने वाला है। किसी का बुरा चाहने से पहले यह भी सोच लें कि आप भी इसी दुनिया में रहते हैं। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। मुखलिस रिश्तों को मजबूरियों में भी जाया न होने दें, क्योंकि मजबूरी तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन रिश्ते नहीं जुड़ेंगे। अगर हम अल्लाह की खुशनुदी के खातिर इंसानों को मोहब्बत देना शुरू कर दें तो आप महसूस करेंगे कि अल्लाह आपको मुस्कुरा कर देख रहा है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा है। इस दुनिया में दो मुंह वाले सांप से बचना तो मुमकिन है, मगर दो मुंह वाले इंसान से बचना मुश्किल है। तीन चीज़ें कभी वापस लौट कर नहीं आती। नंबर 1 बोले गए अल्फाज, नंबर 2 गुजरा हुआ वक्त और नंबर 3 टूटा हुआ भरोसा। सब कुछ ख़त्म हो जाता है, बस एक उम्मीद हमेशा रहती है कि अल्लाह सब बेहतर करेगा। नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो मिट्टी के इंसानों को सोना बना देती है। अगर आपने कभी किसी दुखी इंसान को खुश किया है तो यकीन रखें तकदीर ज़रूर आपका पीछा करेगी। जैसे ही उसे मौका मिलेगा वह आपको उसका बदला ज़रूर लौटाएगी। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज़्यादा कीमती होते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियाँ होती हैं वह झोपड़ी में भी हंसते रहते हैं। जिंदगी की जंग अपने बलबूते पर लड़नी पड़ती है। लोग सिर्फ मशवरा देते हैं, साथ नहीं। दुनिया में जो चीज़ बहुत कम है वह सच्चाई और अमानत है, और जो सबसे ज़्यादा है वह झूठ और खयानत है। लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दो, क्योंकि इज़्ज़त अल्लाह देता है, लोग नहीं। लोगों के हुकूक दुनिया में ही दे दो, वरना आखिरत में नेकियां देनी पड़ेंगी। कोई गुरूब हमेशा के लिए नहीं होता और ना ही कोई तुलू भी हमेशा के लिए होता है। बेहतरीन लोग वह हैं जो ज़िंदगी के उरूज और जवाल में अपने रब की रज़ा पर शुक्रगुजार रहते हैं। इखलाक से बात करना परेशानी से निजात है, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी ज़बान की वजह से आती हैं। हम जिंदा लोगों को तो रोटी नहीं देते, मगर मरे हुए लोगों के नाम पर रोटियां देते हैं। पूरी ज़िंदगी यह कोशिश करते रहें कि कोई आपकी शिकायत रब से न कर दे।
किसी तीसरे की क्या औकात कि वह रिश्ता ख़त्म करवा दे। रिश्ता तब ख़त्म हो जाता है जब कोई अपना बेईमान होता है। अच्छा किरदार आपको ज़िंदा रखता है, दिलों में भी और लफ्ज़ों में भी। यह दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक दे जो वह अपने लिए चाहता है। सोच समझकर ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब देना पड़ेगा। दूसरों के साथ ज़्यादातर वह नेक सलूक करते हैं जो खुद मुश्किल वक्त गुजार चुके हों। अपने चेहरे पर कोई दर्द न तहरीर करो। वक्त के पास ना आँखें हैं और ना हिसाब और ना ही दिल। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। कपड़े अच्छे बुरे नहीं होते, कपड़ों के अंदर जो इंसान होता है वह अच्छा या बुरा होता है। अगर अच्छे कपड़ों के अंदर इंसान ही अच्छा न हो तो क्या फ़ायदा। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह आपके अंदर नहीं है तो कहीं नहीं है। अल्लाह अगर तुम्हारा दिल अब तक नहीं बदल रहा है तो मुमकिन है कि तुम्हारा सब्र देखकर तुम्हारे नसीब बदलने का फ़ैसला कर चुका है।